हाँ लिख लीजिए. We have three methods to calculate mean in the continuous series. Here the topic is mean in continuous series. We have a question. Marks of students are given below. Find out mean. Find out mean. So we have the marks and number of students. The continuous series is that series in which data are in groups. Yes, data are in group 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. For example, we have this question. The frequency is 20, 24, 40, 36, and 20. Each has question this as current mean. We have to calculate the mean. Mean calculate करना है. Direct method में, for direct method, the formula is summation of fx divided by n. Continuous series में जो फॉर्मूला है कैलकुलेट करने के लिए, मीन कैलकुलेट करने के लिए, वो है समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय एन. समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय एन. सो एफ हमारे पास है लेकिन एक्स नहीं है. एन होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी. एन इज सम ऑफ फ्रीक्वेंसी. इसको सम कर लीजिए. 4 गए 10 8 Zeta गए 3 3 5 5 और गए 9 9 3 गए 12 गए 14. 140 is n. The value for n is 140. अब x याद रखना है आपको, ये मिड वैल्यू होता है, मिड पॉइंट ऑफ द डेटा. ये मिड पॉइंट ऑफ द डेटा होता है. मिड पॉइंट इस कैलकुलेट करा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2. Lower limit is 0, upper limit is 10 divided by 2. 0 plus 10 divided by 2, it is 5. समझ आया वहां पे क्या बना है? 10 plus 20, 10 plus 20 divided by 2, it is 15. 2 5 बटा 2 गए 5. 3 4 गए 7 बटा 2 गए 7 divided by 2 go 35. 40 plus 50 go 90, you go 45. So you can also go xs. This is our x. S cash card on fx. F into x. F into x. 20 into 5. It is 100. You have to multiply. 24 into 15. 24 into 15. Shabash, can you say? Calculator and guess how many? It is 360. You have to multiply. 40 into 25. It is 1000. 35 into 36. 35 into 36. You should wash out the share. 45 into 20. It is 900. Yes, karo is plus summation fx ka barabar. Summation fx का बराबर. Yes, could you plus 0 0 0 0 0, it is 0. Shet shege ba ak tage z 3 zage 5 5 zage 7 7 8 z. ठीक द्रावा गलत को कहता है. It is z 3 गए 5 आ गए 6 z 3 गए 5 आ गए 6.
करो अस ठीक 0 0 0 6 तो 6 गई 12 8 9 तो आ गई 10 10 तो 2 गई 12 12 3 गई 15 तो आ गई 16 8 8 तो 8 2 तो आ गई 3 3620 3620 यम लगाओ इस यार फार्मूला मज यम लगे तो फार्मूला मज यम वैल्यूज therefore x bar go बराबर तिल summation fx draw 3620 divided by n goes 140 तो 3620 divided by 140 it is 25.85 25.85 or 86 ये क्या से draw as mean by direct method mean by direct method this is mean by direct method so it is very simple godnach has x cardon that is midpoint but f is the x cardon zero that is multiplication yach cardon plus lakun chimje fx summation divided by 140 25.86 wo karba shortcut math now I will do the shortcut method यह क्वेश्चन लिखुन बे the same question marks of students are given find out mean this is Marcus and this is number of students बेलक भी है सवाल 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 ठीक है 40 to 50 यही है फ्रीक्वेंसी 20 24 40 36 and we have 20 शॉर्टकट मेथड के लिए हमारे पास फार्मूला है फॉर शॉर्टकट मेथड द मीन इज इक्वल टू a प्लस समेशन fd डिवाइड बाय n this is the formula a plus summation fd divided by n n क्या होता है इट इज सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हमने अभी कैलकुलेट की सेम डेटा में 140 d होता है x minus a deviations from x a is assumed mean ठीक है मुझतो होतो है फिर तो d is x minus a तो नेमो सॉरी अभी हमारे पास x नहीं है अभी हमारे पास x नहीं है x में निकालना है x is midpoint lower limit plus upper limit divided by 2 0 plus 10 divided by 2 it is 10 divided by 2 it is 5 20 plus 10 30 divided by 2 it is 15 30 to 5 बटा 2 5 40 30 7 50 50 नंबर को 50 45 draw as x वह कोन d करित d is equal to x minus a तोलोन निमो मस अक्यूस assumed mean पहला वाला और लास्ट वाला नहीं बीच वाले में से किसी को भी उठाओ फॉर एग्जांपल 25 ये बीच वाला आता है 25 अब निकालेंगे deviations from x x से कितना ये d हमारा deviate हो गया भाग गया it is 5 is x value of x is 5 a is 25 5 minus 25
it is minus 20. 15 minus 25, it is 10, minus 10. 25 minus 25, 0. 35 minus 25 is 10. 45 minus 20 is 25 is 20. 45 minus 25. अब निकालना है हमें f and d. f multiplied by d. f multiplied by d. ये दो कॉलम्स में निकालने हैं. f multiplied by d. ये कॉलम हमें निकालना है. 20 into 20, it is minus 400. 20 minus 20, it is 400. 24 into 10, it is 240. Minus 240. 40 into 0, it is 0. 36 into 10, it is 360. 20 into 20, it is 400. Summation FD हमें निकालना है. So A हमने निकाला, A हमारे पास है, FD देखना है और NFB हमारे पास है. FD क्या है? 4 गए 67 minus 67. 4 गए 67. यह करो ये minus 0 शेने 4 2 120. 120 draw ऐसे ये 120 is our summation FD. Therefore x bar गोतिल बराबर H25 plus summation FD 120 divided by n 140. Therefore x bar is equal to 25 plus 120 divided by 140. 120 divided by 140. It is 85.857. It is 86. 0.86. Therefore x bar is equal to 25.86. जो हमने अभी निकाला. use ऐसे वही निकाल. So this is shortcut method. This is shortcut method. अब हमारे पास तीसरा मेथड है. We have third method, that is step deviation method. सेम क्वेश्चन हम उठाएंगे और स्टेप डिविएशन मेथड हम लगाएंगे, फिर देखेंगे क्या आएगा हमारा. ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लिया, ये लिख लिया. यही क्वेश्चन मैं लिखूंगा और स्टेप डिविएशन मेथड लगाऊंगा. ये हमारे पास क्वेश्चन है. अब मैं स्टेप डिविएशन मेथड लगाऊंगा. स्टेप डिविएशन मेथड. तो स्टेप डिविएशन मेथड हमारा एक्स बार बराबर होता है a प्लस समेशन एफ डी डैश डिवाइड बाय n इंटू सी. दिस इज स्टेप डिविएशन मेथड. उसमें a शॉर्टकट मेथड में a प्लस समेशन एफ डी डिवाइड बाय n. ये d डैश नहीं था और c नहीं था. व्हाट इज दिस d डैश? d डैश इज सिंपली जो हमने d निकाला इसको डिवाइड बाय c करना है. c क्या है? c इज कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर जिससे हम डिवाइड करते हैं d को, जिससे हम डिवाइड करते हैं. a हमें पता है a इज एज्यूम्ड मीन. एज्यूम्ड मीन. सो अब हमारा पहला स्टेप जो है n हमें पता है इट इज टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी. पहला स्टेप जो हमारा है वो x निकालना है, दैट इज मिड पॉइंट, जो हम बार बार निकालते हैं. जब तक में x हमारे पास हो तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं. x वैल्यूज ऑफ x जो वेरिएबल है, बेसिक वेरिएबल. मिड पॉइंट होता है 0 प्लस 10 डिवाइड बाय 2, इट इज 5. 10 प्लस 20, इट इज 30 डिवाइड बाय 2, इट इज 15. It is 25, it is 35, and it is 45.
lower limit plus upper limit divided by 2, 45, lower limit plus upper limit divided by 2, 35, lower limit plus upper limit divided by 2, 25, lower limit plus upper limit divided by 2, 15. ये हो गया x. d होता है x माइनस a. a हमें देखना है a क्या है. a इसमें से निकालना है. अभी हमने निकाला फॉर एग्जांपल 25 एज्यूम्ड मीन. ये एज्यूम हमने किया, ये मीन हमारा है. 5 minus 25 it is minus 20 minus 10 it is 0, it is 10, it is 20. 5 minus 25 minus 20, 15 minus 25 it is minus 10, 25 minus 25 it is 0, 35 minus 25 it is 10, 45 minus 25 it is 20. अब हमारे पास d आ गया. अब d डैश निकालना है. d डैश होता है d डिवाइड बाय c. d डिवाइड बाय c. ये c हमें इसमें से उठाना है जो छोटा होगा, जिससे ये सबों का डिवाइड होगा. तो 0 तो नहीं हो सकता है, 10 मैं उठाऊंगा. 0 से ऊपर 10 है यहाँ. तो यहाँ क्या करना है, 20 ये d का वैल्यू है, d का वैल्यू है 20, c का वैल्यू है 10. 20 माइनस 20 डिवाइड बाई 10, ये -2 आएगा. माइनस 10 डिवाइड बाई 10 -1 आएगा. 0 डिवाइड बाई 10 ये 0 आएगा. 10 डिवाइड बाई 10 1 आएगा. 20 डिवाइड बाई 10 ये 2 आएगा. बन गया हमारा d डैश. अब f d डैश, f और d डैश को मल्टीप्लाई करना है. f और d डैश को मल्टीप्लाई करना है. 20 इंटू -2, 20 इंटू -2 बन गया -40. 24 इंटू 1 ये हो गया -24. 40 इंटू 0 ये हो गया 0. 36 इंटू 1 ये 36. 20 इंटू 2 ये हो गया 40. So this is FD dash. FD dash. अब इसको टोटल करना है. समेशन FD dash में जरूरत है. यहाँ समेशन FD dash, समेशन FD dash में जरूरत है. 40 माइनस आया 64. 40 76. अब देखेंगे क्या आएगा. ये प्लस वाले आ गए 76 माइनस वाले आ गए 64. 6 वालों 4 अतरू 2 97 12. 12 is our 12 हमारा ये बन गया FD डैश. 12 हमारा आ गया FD डैश. अब यही वैल्यू इसमें लगाएंगे. देयरफॉर x बार बराबर है a क्या है 25 प्लस FD डैश 12 है डिवाइड n 140 है इंटू c हमारा 10 है. c हमारा 10 है. देयरफॉर x बार बराबर है 25 प्लस 12 इंटू 10 120 डिवाइड बाई 140. सो x बार बराबर है 25 प्लस 120 डिवाइड बाई 140. 120 डिवाइड बाई 140. अभी हमने निकाला था 120 डिवाइड बाई 140. ये हो गया 0.857. दैट मीन्स 0.86. देयरफॉर x बार बराबर है 25.86. हमारा x बार निकल गया. So in all the three methods we get the x bar or mean as 25.86 from all the three methods, from direct method, from shortcut method, and from setup deviation method. So these three methods we can use. So अब हमारी चॉइस है कि हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे. 3 में से एक. तो तीनों मेथड मैंने आपको दिखा दिए. What is about all the three methods? All the three methods. अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूंगा जिसमें आप तीनों मेथड लगाएंगे. In which
You have to use all the three methods. ये होमवर्क आपके लिए है. होमवर्क है. Find out mean. Find out mean from the following data. जो डेटा है, जो हमने डेटा दी है, उसमें से मीन निकालो. We have items and we have frequency. ये क्वेश्चन घर के लिए है. ये F है. ये X नहीं है. X सेमी थ्रो मिड पॉइंट निकालना है. आइटम्स क्या क्या है? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70. सेवेंटी टू 80, 70 to 80 भी लिख लीजिए. 70 to 80. शाबाश. तो फ्रीक्वेंसी क्या क्या है? 2, 5, 7, 13. 2, 5, 7, 13. 21, 16, 8. 21, 16, 8 and 3. ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है. हमें निकालना है what mean by direct method, by shortcut method and by step deviation method. तो डायरेक्ट मेथड में अभी हमने पढ़ा, for direct method the formula is summation fx divided by n. For shortcut method, the formula is x bar is equal to a plus summation fd divided by n. For step deviation method, the formula is a plus summation fd dash divided by n into c. These are the three formulas used in calculating mean in continuous series. हो गया? समझ आ गया? जी सर. और कोई कंफ्यूजन मत है? नो सर. घर में ये क्वेश्चन करना, तीनों मेथड लगाना, ये घर के लिए काम. थैंक यू. ओके सर. थैंक यू वेरी मच. थैंक